بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما كما صليت صليت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك إنك حميد حميد مجيد. مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم اللهم بارك بارك على على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما كما باركت باركت على على إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك إنك حميد حميد مجيد. مجيد. رب يسر رب رب يسر يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر تؤثر وتمم بالخير وتمم وتمم بالخير. بالخير. قد نستعين يا فتاح وبك وبك نستعين نستعين يا يا فتاح. فتاح. رب زدني علما. رب رب زدني زدني علما. علما. پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ فیل پڑھی تھی، سبھی کے سمجھ میں آیا تھا؟ سب نے پریکٹس کی؟ جی پریکٹس کی تھی تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورہ فیل یہ ہو گئی ہماری نا. اب ہم آج پڑھیں گے سورہ قریش. جی اوکے. وہ بھی ریوائز کبھی کرتے چلنا ہے نا. جی اور یہ 10 سورہ کا بھی کرنا ہے ساتھ میں. سورہ فاتحہ سنائی تھی کیا نام ہے، ادیبہ حسین نے اور ایک آفرین لطیف صاحبہ نے. تو آپ لوگ کے فائدے پورے ادا نہیں ہوئے اس میں. ادیبہ حسین موجود ہیں؟ ویڈیو بھیجی تھی سورہ فاتحہ کی اور سورہ فیل. میں نے ابھی ابھی سب ہم سے نے بھی لاسٹ آڈیو بھیجی تھی لیکن چیک نہیں کی ہے. کا ہم وقت پہلے کا ہے تو وہ اوپر چلا گیا. آپ پھر سے ٹیک کر دینا، میں چیک کر دوں گی فرسٹ انشاءاللہ میں آج. ہم نے بھیجا تھا. جی آپ بھی. سب آ گئے سینئر بیچ کے؟ جی الحمدللہ. جی اب بھی سبھی ہیں شاید سے. چلیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. لإيلاف قریش. لإيلاف لإيلاف قريش. قريش. لام زیر لی، اس کو مجهول نہیں پڑھنا، معروف پڑھی. لام زیر لی. لام زیر لإيلاف قریش. لإيلاف لإيلاف قريش. قريش. لام قریش. زیر ای، اس کے بعد حمزہ یا زیر ای، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. لی ای، لام کھڑا زبر لا، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اور فا زیر فی، اسے جلدی پڑھیں گے. جلدی پڑھیں گے. لإيلاف قریش. لإيلاف قريش. لإيلاف قریش. لإيلاف لإيلاف قريش. قريش.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم 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 رحلة رحلة میں راہ حاضر راہ حاضر بڑی حاضر اور راہ کو باریک پڑیں گے بڑی رحلتش خاطر سامنے آنا چاہیے نا جی رحلتش رحلتش رحلت رحلة الشتاء والصيف رحلت الشتاء والصيف شتائی اس میں مد ہے کون سا مد ہے مد متصل کیوں مد متصل کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ والصيف والصيف میں حروف شمسی کا فائدہ ہو رہا ہے جی الف لام نہیں پڑھا جائے گا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب هذا هذا الغيد بیت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت با یا زبر بئی اور تا بیت جی یائن جبریا یائلین ہو رہا ہے نا فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع من میں جو یہاں پر اخفا کر رہے ہیں میم نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 جیسے میں سے جیم آیا ہے اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے ظاہر نہیں چھپا کر پڑھیں گے جی آمنهم من خوف وآمنهم من خوف اب جہاں جہاں آیت ہو رہی ہے پہلی آیت لی الاف قریش یہاں پر شین کی نیچے دو زیر کی تنوین ہے جب ہم رک رہے ہیں آیت کر رہے ہیں تو تنوین ختم ہو جائے گی دو زیر ختم ہو جائیں گے بس سوائف یہاں پر بھی فا کے نیچے جو زیر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا نا رب حاضل بیت تازیرتی یہاں پر بھی زیر ختم ہو جائے گا اسی طرح من خوف یہاں پر بھی دو زیر کی تنوین ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی
اور منجو پہ جو یہاں پر بھی اگر رکیں گی تو تنوین نہیں پڑے ختم ہو جائے گی دو زیر کی، اور اگر نہیں رکیں گے تو پھر ادغام کریں گی، ادغامی ناقص ہوگا یہاں پر۔ جی اپی جو پڑھ سکتے وآمنهم من خوف، جی ٹھیک ہے، جی اس سے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ میں نیٹ ورک کی وجہ سے آج باہر بیٹھی ہوں، اس وجہ سے باہر کا بہت شور ہے نا آ رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بار بار بند کرنا پڑ رہا ہے مائک۔ نہیں آپ کے ادھر کوئی آ نہیں رہی آواز، بالکل صاف آواز آ رہی ہے، بیک گراؤنڈ کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ لإيلاف قريش، لإيلاف قریش، قریش لإيلاف قريش لإيلاف قریش، قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت ربا کی را کو پر پڑیں گے، ربا رب ربا، رب رب هذا البيت رب رب هذا هذا البيت البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم أطعمهم من من جوع جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من من خوف لإيلاف قريش لإيلاف قريش قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش قريش إيلافهم لإيلاف رحلة قريش الشتاء والصيف لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف یہاں پر اگر کسی کی سانس ٹوٹ رہی ہے یہاں پر بھی رک سکتے ہیں، میں نے پڑھا ہے، آپ چاہیں تو یہاں پر بھی رک سکتے ہیں، اس کے بعد وَآمَنَهُ مِنْ خَوْفٍ اسے دوسری سانس میں پڑھ سکتے ہیں، جی جی اور اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پڑھ سکتی ہیں تو پورا پڑھ لیجیے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اس طرح۔ جی 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 اپنی ابھی یہاں پہ لام الف دو جگہ پہ ہے تو ایک جگہ پہ ہم رکیں گے اور دوسری جگہ پہ ملا کے پڑھیں گے، ایسا ہوتا ہے نا کچھ رول؟
क्या कहा आपने? मैं कही थी दो जगह पे है लाम अलीफ, तो एक जगह पे मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी जगह रुक कर पढ़ेंगे, ऐसा रूल है ना शायद इसका। लाम अलिफ के नीचे आयत बनी है ना, वहां पर रुकना है। हाँ। 2 जगह नहीं है, 3 जगह है। हाँ, दो जगह आयत पे है ना। जी। आयत पूरी होने पर लाम अलिफ आ रहा है ना, तो वहां पर यहाँ पर हम फिर पीछे से लौटाने की जरूरत नहीं है, ये पक्की आयत है। अच्छा। और जैसे कि आयत के बीच में आ रहा है, तो फिर वहां पर अगर दो अलामतें आ रही हैं, तो ऊपर वाली पर हम अमल करेंगे। लेकिन इसमें ये है कि मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, बाज दफा सुना है रात में भी मिलाकर भी पढ़ लेते हैं म्यूजू, और यहाँ पर रुक भी सकते हैं। अगर आपकी सांस नहीं टूट रही है तो आप आगे तक पढ़ लीजिए, पूरी मुकम्मल कर लीजिए, आयत खौफ तक पढ़ लीजिए। और अगर लग रही है आपकी सांस टूट जाएगी तो आप यहाँ पर रुक सकती हैं। जी। ठीक है, दोनों ही तरीके से हमें पढ़ना आना चाहिए। जी जी। अगर रुकेंगे तो देर खत्म हो जाएंगी, आइन के नीचे जो दो देर की तनवीन है वो खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं रुकेंगे तो फिर इदगाम होगा, इदगाम में नाक़िस होगा, गुन्ना के साथ जी मिलाकर पढ़ेंगे। जी। ठीक है, अब आप लोग बताइए इसमें कायदे। हमने इसकी तिलावत कर ली, अब आप लोग कायदे बताएंगे। एक एक कलमे का, एक एक वर्ड का कायदा बताइए, क्योंकि छोटी सूरह है, सभी बता देंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। जी। अनीसा साहब आप बताइए, ली इलाफी में कौन कौन से कायदे लग रहे हैं? लाम के नीचे जेर, हमजा के लाम के नीचे जेर है, और अलीफ के नीचे भी जेर है, और या के नीचे जजम है, तो यालीन का कायदा लग रहा है यहाँ। लाम के ऊपर खड़ा जबल लगा है, इसलिए एक यहाँ अलीफ के पर मकदार खींच के यहाँ पढ़ेंगे। पर जजम है, नीचे नहीं है जजम, यहाँ पर जजम है। यहाँ पर, हाँ, जजम नहीं, वाली या है। अलीफ के नीचे जेर है, तो यहाँ यालीन का कायदा लग रहा है, या मद्दा नहीं, का, सही से लिखिए। या मद्दा का कायदा लग रहा है। जी, या मद्दा का लगा। उसके बाद लाम पर खड़ा जबर है, तो यहाँ एक अलीफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। फा के नीचे जेर है, काफ के ऊपर काफ साकीन है, तो यहाँ कलकले का कायदा लग रहा है। खास जी, साकिन कहाँ पर है? खास साकिन। हाँ, तो कलकला होगा ना। नहीं, अब भी हम बताएं। काफ पर पेश है ना। काफ पर पेश है, कॉफ पर खाफ पेश है। पर पेश है ना, कुरैश की खाफ पर पेश है, पेश है। कुरैश पेश है। अच्छा, कुरान नहीं उठाए, हम इसमें से ही बता रहे हैं इसलिए। रा पे जबर है, इसे पुन पढ़ेंगे। या के नी या पर जजम है, तो यहाँ यालीन का कायदा लग रहा है। शा के नीचे जेर है, इसे साकीन कर देंगे। शीन के ऊपर जेर है, इसे साकीन कर देंगे। सही है। हम्म। जी, डबल बताएं क्या, दोबारा बताएं? अब की आवाज नहीं आ रही। जी, ठीक है, बोल लेंगे वो। जी, आवाज तो आ नहीं रही। वो मैसेज वो करा है मैसेज में उन्होंने। बता रही है कि ठीक है। जी जी, रूबीना साहिबा आप बताइए, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब भी आ रही है। आप बताइए इसके बाद। सही बताया जी अब माशाल्लाह, भी। अनीसा जी अब साहिबा भी। ने भी। जी, हमजा के नीचे खड़ी जेर है, तो इसको एक अलीफ के मकदार खींच कर पढ़ेंगे। और लाम के ऊपर खड़ा जबर है, तो इसको भी एक अलीफ के मकदार खींच कर पढ़ेंगे। फा के नीचे जेर की हरकत है, इसको जल्दी अदा करेंगे। और हा के नीचे जेर की हरकत है, तो इसको भी जल्दी अदा करेंगे। मीम पर जज्म है, तो मीम को पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। रा के नीचे जेर है,
और हा के ऊपर जज्म है तो इसको पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे, रा को जल्दी पढ़ेंगे, रही। और लाम के ऊपर जबर है तो इसको भी जल्दी अदा करेंगे, और ता के ऊपर जबर है तो इसको भी जल्दी अदा करेंगे, रिहिलतश। अब प्योर बताएं आगे। जी बस ठीक है, माशाल्लाह बेहतर है। रिहलतश, रिह इसमें कौन सी हाँ है? इसमें बड़ी बड़ी हा। हा है हुर्फ तो हलफ इसको है, अलग से अदा करेंगे, इसको बड़ी हा। रिहिलतश, री बड़ी हा है। ठीक है माशाल्लाह। इसके बाद का बताइए, साइमा साहिबा। जी। अ, शीन अलीफ लाम को छोड़कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हुर्फे शमसी का कायदा है। और शीन पे तशदीद है, इसको 2 बार पढ़ेंगे। एक पिछले वाले हुर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और एक बार खुद उसके साथ। रिहलतश। अम, उसके बाद हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ अ, मुत्तलिक, सॉरी नाम भूल गई मैं। हुर्फ मुत्तसिल। मद मद है अलिफ पर, तो मद मुत्तसिल है, जी, हमजा इसको उसी कलमे मिलाकर में है। पढ़ेंगे। अलिफ पर अलिफ पर मद है। अभी मैं ये भूल गई इसको कैसे, मतलब कायदा कैसे तो बताते हैं। उससे मद मद वाला अलिफ पर हुर्फ उससे मद मद्दा के है। बाद हम बड़ी जेर है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही, टूट टूट के आ रही है आवाज। मद के बाद हमजा है, हमजा के नीचे जेर की हरकत है। शिताई। शराब पे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने कुछ कहा क्या अभी? जी अभी वापस डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, जब भी आवाज नहीं आ रही थी। डिस्कनेक्ट हो गई है वो। इसको इस तरह पढ़ेंगे कि हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में अपनी असल शक्ल में आ रहा है, इसलिए ये मद्द मुत्तसिल होगा। इसे कितनी हरकत, 2 ढाई 4 अलीफ की हरकत में खींचकर पढ़ेंगे। इस तरह से इसका कायदा बताएंगे, ठीक है। जी जी। और इसमें ये भी सवाल किया जा सकता है कि इस मद में कौन सा हुरूफ, इसमें कौन सा इस मद्द मुत्तसिल में, इस कलमे में कौन सा हुरूफ मद आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हुरूफ मद है? अलिफ। अलिफ मद हो रहा है यहाँ पे। कभी अलिफ मद होगा, कभी वाव मद होगा, कभी या मद होगा, तो उस पे मद्द मुत्तसिल होगा। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा। जी तो इस चीज को जी भी आप सभी से कह रहे हैं, सब लोग इसे याद रखें, है ना। मुझे याद आ जी गया क्योंकि जी ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में किया गया था एक बार, कि जी। मुझसे ही किया गया था ना। आ गई है सना साहब, अब आप आगे जी। आगे बताइए आप साइमा साहिबा, वो सुन लेंगी। जी जी जी। नहीं सुन रही। वाव पर वाव पर जबर की हरकत है, इसे जल्दी अदा करेंगे। सौत पे तशदीद है, इसको 2 बार अदा करेंगे। एक पिछले वाले हुर्फ के साथ मिलाकर और एक खुद उसके साथ। अलिफ लाम को छोड़कर पढ़ेंगे, यहाँ पे हुर्फे शमसी का कायदा है। और जज़म या साकिन से पहले वाले हुर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे, या साकिन से पहले जबर है तो यहाँ पर याए लीन का कायदा होगा। और फा के नीचे जबर को हटाकर पढ़ेंगे क्योंकि वक्फ का कायदा होगा। जी। और आगे पढ़ूं? अब मुझे आवाज नहीं आ रही। वो सना साहिबा कुछ कह रही थी, अभी रुक जाएं 1 मिनट। अच्छा। फिर से डिस्कनेक्ट हो गई।
ٹھیک ہے، آپ نے صحیح اچھا بتایا ماشاءاللہ. اس میں ایک چیز دیکھ لیں کہ واو پر زبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واو کے بعد سواد جو ہے نا وہ مل رہا ہے نا. تو اچھا آپ سیدھا بولیں گے کہ واو سواد سے ملے گا، کیونکہ سواد کے اوپر تشدید لگی ہے، تو سواد جو ہے وہ اس سے پہلے والے حروف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اچھا. اس طرح سے جی بول دیں. اور یہ الف لام کا قاعدہ بتا دیا تھا نا، الف لام کا یہاں پر. جی جی. لام الف. ٹھیک ہے. ہاں اور الف لام. کوشش کریں جی ایک اور چیز ایڈ کر لیں آپ لوگ، کہ جہاں پر حروف آ رہے ہیں تو ان کو بھی بتا دیا کریں. بہتر ہے کہ اس کو بھی اپن مینشن کر دیں نا. جی جی جتنی چیزیں اپن کو آتی ہیں اپن سبھی چیزیں مینشن کریں، کہ سواد یہاں پہ جی. پر حروف ہے، موٹا پڑا جائے گا. اوکے. جی آپ انشاءاللہ. اور یہاں پہ کون سا قاعدہ لگا وقف کا وہ بھی بتائیں، کہ یہاں پر آیت ہونے پر زیر جو ہے فا زیر فی جو ہے وہ جزم سے تبدیل ہو جائے گا، سوائف ہو جائے گا، سوائف. اس طرح سے پورا مکمل بتائیں. ماشاءاللہ اچھا بتا رہے اوکے. ہیں آپ. شکریہ. اچھا لگ رہا ہے، آپ لوگوں کا امپرومنٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا. جی اپی الحمدللہ ہم لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے پڑھنے میں. ثنا صاحبہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. آئی نہیں، میں میسج چیک کرتی ہوں جب تک کوئی اور آگے پڑھے. جی پوچھ لو سب سے فائدہ ایک ہی بات کے جی اپی ہم بتا رہے ہیں. جی کون صاحبہ نام بتائیں. آفرین اظہر. جی آفرین صاحبہ ماشاءاللہ آپ فَلْيَعْبُدُوا. اچھے سے ایکٹیو رہتی ہیں، ہوم ورک اور ساری چیزیں بھیجتی ہیں، ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے آپ کی. جی اپی فَلْيَعْبُدُوا کا بتا رہی ہوں میں. جی بتائیے. فا کو لام سے ملائیں گے اور یا کو این سے ملائیں گے. یا فل یا با واو پیش بو، دال واو پیش دو. واو ساکن سے پہلے دال پر پیش ہے تو یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. ایک منٹ رکیے، اور اس میں ایک منٹ رکیے. یا کے بعد کون سا حروف لکھا ہے؟ آئین، حروف آئین. حلقی کا. ہاں جی اس کو آئین بولی. ابھی آپ نے تھوڑا اس کا پروننسیشن صحیح نہیں کرا تھا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی اپی وہ تھوڑا نزلہ ہو رہا ہے. اچھا اچھا اچھا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. جی میں بتاؤں طلعت صاحبہ. جی آپ بولتی رہیے نا. جی جی میں ادیبہ حسین میں بتاؤں. نہیں نہیں، آفرین صاحبہ بتا رہی تھی نا پوری ایک آیت، ایک ایک آیت بتائیے سب پوری پوری. جی جی اچھا پھر پوری آیت بتا دوں. جی را کو با سے ملائیں گے 2 بار. اس پر تشدید آ رہی ہے، اس کو سختی سے ادا کریں گے. اور را جو ہے وہ پر حروف ہے، ایک پر منٹ، حروف ہے. را کو ایک منٹ، آپ نے کیا بولا؟ را کو با سے ملائیں گے 2 بار. ابھی ایک پہلے اس کو با کو ملائیں گے پہلے حروف سے، را کو ملائیں گے، پھر با کو خود لیکن پڑھیں گے ایک بار. ایک منٹ، آپ نے سینٹینس غلط کہہ دیا جلدی میں. آپ نے بولا را کو با سے ملائیں گے 2 بار، اس طرح سے نہیں کہیں گے. جی پہلے تو یوں کہیں گے را کو با سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ با پہ تشدید لگی ہے. تو ایک بار جی با اس سے پہلے والے حروف سے ملے گا، اور ایک بار اس پہ خود کی اعراب لگی ہے وہ پڑھی جائے گی. اس طرح سے بتائیں گے. تھوڑا لفظ ادھر ادھر کر لیں، لیکن آپ نے وہ سینٹینس تھوڑا سا غلط جی کہہ جی دیا. جی ٹھیک ہے. جی اور را کا قاعدہ بھی بتاتے چلیں. جیسے پر حروف ہیں تو یہ یہاں پہ رب. پر ہو رہا ہے. جی ہوں رب اس کو تھوڑا سختی سے ادا کریں گے. ہوں ہاں پہ کھڑا زبر ہے، یہ چھوٹی ہاں ہے، اس کو سینے سے ادا کریں گے. اور سینے سے نہیں ادا ہوگی. سینے سے آخری کچھ بھی والے ادا حصے نہیں ہوگا. حلق سے، حلق کے آخری والے حصے سے ادا ہوگا. اتنا کہنا بھی کافی ہوگا. سینے جی والا حصہ کہا جاتا ہے، لیکن ہوتا وہ حلق کا حصہ ہے. میں نے ایک بار شاید آپ کی کلاس میں اس بات کو بتایا تھا کہ اس کو اچھے سے جی
آپ لوگ دماغ میں رکھ لیں، سینے والا حصہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے وہ حلق کا، حلق حلق کا کے آخری استعمال سے، ضروری ہے، حلق ورڈ بولنا بہت ضروری ہے نا۔ جی، حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے چھوٹی ہا، اس پہ ہوں کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار تھوڑا کھینچ کر ادا کریں گے۔ ہوں زال پہ تو زبر ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، تھوڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک الف کی آپ نے مقدار بتا دی جب کسی چیز کی کہ جی 1 چمچ نمک ڈلے گا، تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ 1 چمچ نمک ڈلے گا تھوڑا، جی ٹھیک نا، سمجھ گئی نا ڈفرینس؟ جی، جی جی چلیے۔ اس پر الف مدہ ہو رہا ہے ہوں زال پہ، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، زال کو ڈائریکٹ با سے ملائیں گے، بائٹ، یہاں پر شمسی کا قاعدہ ہو رہا ہے، نہیں اپی، کمری کا، سوری، زال کو لام سے ملائیں گے، الف چھوڑ کر پڑھیں گے، اور با با یا ساکن سے پہلے با پہ زبر ہے تو یہاں یالین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اپی، جی جی بالکل صحیح، ماشاء اللہ۔ اور تا پہ زیر ہے تو یہاں پر ہم آیت کریں گے تو بیت ہو جائے گا، مطلب زیر ہٹ جائے گا، ہوں زیر ہٹ کر کیا ہو جائے گا؟ تا ساکینہ ہو جائے گا۔ تا ساکن ہو جائے گی، جی اور یہاں پہ کیونکہ لام الف آ رہا ہے تو آپ کو اس طرح سے بتانا ہے کہ لام الف پر رکنا نہیں چاہیے، ملا کر پڑھنا چاہیے، پر لام الف آیت کے ساتھ ہے تو رک بھی سکتے ہیں، تو یہاں تا جی جو ہے تا زیر تی تا ساکینہ ہو جائے جی گا، اس طرح سے مکمل بتائیں، ٹھیک ہے؟ جی اپی، اور ایگزام کے لیے بتا رہی ہوں کہ اگر کسی چیز میں شیورٹی نہیں ہے کہ آپ جی تھوڑا سا غلط بتا سکتے ہیں تو آگے بڑھ بڑھ کے زیادہ زیادہ بتانے کے چکر میں غلطی نہ کریں، ہے نا؟ جی ہوں اور جیسے آپ نے ہا کا، حلق کو، سینے والا یہ مخرج بتایا، تو ہمیں جی مخرج بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جی کیونکہ آپ لیول 2 میں ہیں، تو اگر آپ سے کسی کا مخرج بیچ میں سے انہوں نے پوچھا تبھی بتائیں، جب جی تشریح کریں گے آپ لوگ، یہ جو کر رہے ہیں تشریح کر رہے ہیں نا، مطلب جی آپ جی اس کو پورا ہجے کر کے بتا رہے ہیں اس کے پورے قاعدے، تو اس میں آپ جی کو مخرج کی ڈیفینیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، چلیے شکریہ۔ آج آپ نے صحیح بتایا، ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا۔ آگے ادیبہ صاحبہ آپ کہہ رہی تھی، آپ پڑھی۔ جی اپی، الف کو لام الذی، الف کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، لام پہ تشدید ہے 2 بار سختی کے ساتھ، دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اسے جلدی ادا کریں گے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں یا مدہ ہوگا، اور یا ساکن پر ایک منٹ، مد لگا ہے، ال کے بعد آپ نے کیا قاعدہ بتایا وہ ذرا سے میں نے سنا نہیں، پھر سے بتائیے۔ جی کہاں پر طلعت صاحبہ؟ سیکنڈ قاعدہ کیا بتایا آپ نے؟ زال کا قاعدہ؟ دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، ہوں جی، بتائیے۔ اور یا ساکن ہے، نہیں، یا مدہ ہو رہا ہے۔ یا ساکن ہے اور اس پر مد لگا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ تو اس کو آپ ادیبہ صاحبہ یہاں پر آپ جی زال کے نیچے زیر ہے یہ بتانے کی اپن کو یہاں ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، اپن یہاں جی سیدھا بڑا قاعدہ بتائیں گے جو اس پہ لگ رہا ہے۔ بڑا قاعدہ جی کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو ہو رہا ہے یا مد کا قاعدہ، اور ایک ہو رہا ہے مد جی مد منفصل کا، منفصل، تو جی آپ سیدھا مد منفصل پر آ جائیں گی پورا بتاتے ہوئے کہ جی زال جی یا ساکین ہو رہا ہے یہاں پہ، حروف جی مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہو رہا ہے، سیدھا بڑا قاعدہ بتائیں گے اپن، ہے نا؟ جی جی ٹھیک اور ہے، اگر آپ سے پوچھ لیا گیا کہ اس مدہ میں کون سا حروف مدہ آ رہا ہے تو آپ کیا بتائیں گی؟ یا یا، جی یا مد آ رہا ہے نا، اس یا طرح سے، مدار ہے، جی ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، یا آگے آگے مدار بتائیے، ہے، جی آگے پوری آیت کمپلیٹ کریے۔ جی جی، تو آپ ساکن ہے اور تو اس کو پچھلے والے حروف سے ملا کے پڑھیں گے، تو کو موٹا پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ ہے وہ، عین پر زبر کی حرکتیں سے جلی پڑھیں گے، میم پر زبر کی حرکتیں جلی پڑھیں گے، ہاں پہ پیش کی حرکتیں سے بھی جلی ادا کریں گے، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، میم کو میم سے بلا کے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ، اور نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اقفا میں سے جیم
آ رہا ہے تو یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. واو ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے ادا کریں گے. اور یہاں پر عین پر دو زیر کی تنوین ہے، اور اس کے بعد یومن یرملون میں سے واو آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر عین کو واو سے ملا کے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ. واو پہ تشدید ہے تو اس کو 2 بار سختی کے ساتھ ادا کریں گے. حمزہ پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. نون پر زبر ہے، اس کو جلدی ادا کریں گے. نون پر زبر کی حرکت ہے، اسے جلدی ادا کریں گے. ہاں پہ پیش کی حرکت ہے، اسے بھی جلدی ادا کریں گے. یہاں پر بھی میم ادغام شفوی کا قاعدہ آ رہا ہے، میم کو میم سے ملا کے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ. اور نون ساکنہ اس کو پچھلے والے نہیں، نون ساکنہ یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے. اور واو ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا. ہوں. واو ساکنہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، واو تو کیا لین ہوگا؟ ہوگا. ہوں. جی واو لین ہوگا، اس کو جلدی ادا کریں گے. اور آیت کرنے پہ فا پر ساکن لگ جائے گا. ماشاء اللہ، بہت بہتر ادیبہ صاحبہ، بہت امپروومنٹ ہے ماشاء اللہ. آپ نے جو لاسٹ ٹیسٹ دیا تھا جی جی اس میں اور اس میں آپ میں بہت فرق ہے. آپ بہت تیزی سے قاعدے بتا رہی ہیں، میں بھی چیک کر رہی ہوں، آپ تیزی سے بتا رہی ہیں ماشاء اللہ. اچھا، چلیے. لیکن آپ نے ایک جو چیز کہی نا، یا واؤ کو جی 2 بار سختی سے پڑھیں گے، یوں نہیں کہنا. جی جی تجدید والے حروف کو سختی سے پڑھیں گے، یہ کہیں گے، ہے نا؟ جی اس جی طرح جی سے کہیں گے. واؤ کو 2 بار پڑھیں گے، یہ الگ سختی بات ہے، کے اور ساتھ. جی تجدید والے حروف کو سختی سے پڑھتے ہیں، یہ الگ بات ہے نا. اور جی آپ جی کو یہاں 2 چیزیں مینشن کرنی تھی کہ آپ ادغام بھی اگر یہاں رکیں گی تو کیسے کریں گی، اور اگر ادغام کریں گی تو کیسے کریں گی. جی ٹھیک ہے نا؟ اگر اگر رک رکیں بھی گے سکتے ہیں نا، تو جو ساکن لگ جائے گا تو تنوین جو ہے ہٹ جائے گی اور ساکن لگ جائے گا. اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. کون سا قاعدہ ہوگا غنہ کے ساتھ پڑھنے پر؟ ادغام ناقص کا قاعدہ ہوگا کیونکہ یومن میں سے واو آ رہا ہے. ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا، اور یرملون اس میں کا کون جی سا جی ہوگا؟ واو آ رہا ہے. اس میں یومن واو آ رہا ہے اس میں. واو آ رہا ہے نا یومن کا. ٹھیک یومن ہے نا، تو یہ چیز بھی تھوڑی سی یہاں بتا دیجیے گا، جی کیونکہ یہاں وقف جی کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے نا، تو آپ اس کو ملا کر پڑھ رہی ہیں، تو ویسے بھی بتا دیں اس جی طرح سے. لا جب کہیں پہ بیچ میں آئے گا تو آپ کو لازمی اس کو ملا کے پڑھنا ہے. جی اگر آیت کے گولے یہ سرکل کے اوپر آئے تو آپ رک سکتے ہیں. اور جی اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے اور بیچ میں کہیں آ رہا ہے، جیسے جیوں جوں پہ آ رہا ہے، جی تو آپ اس کو کیا کریں گے، رک جائیں، لیکن پھر لوٹا کر پڑھیں. آگے جی نہیں پڑھ سکتے، ہے نا؟ لوٹا کے پڑھنے کا مطلب ہے کہ سانس ٹوٹ گئی تو ہم سانس توڑ دیں گے، قاعدہ جو لگ رہا ہے وہ لگا دیں گے، لیکن پیچھے سے جا کر اسے لوٹائیں گے لوٹا تاکہ کے پڑھیں گے. معنی جی تبدیل نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے کون پڑھے گا؟ پہ ہم پڑھیں. رحمت نور صاحبہ جی پڑھ لی. جی اپی. واو پر تشدید ہے اور علی حمزہ پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر اپن ادا کریں گے. آپ کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ یہ وآمنہم. نہیں، یہ تو ختم ہوا نا، آپ شروع سے بتائیں گی نا آپ. ابھی جو تک ہوا ہے نا، وآمنہم من خوف. نہیں، خوف تک کر لیا انہوں نے کمپلیٹ، ہو پورا گیا. بتایا تھا. اچھا، آپ مجھے بتائیے کون سی آیت پڑھ رہے ہیں اپن؟ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ قریش. قریش. پھر سے بولیے. قریش. قریش. قریش، ہے نا؟ جی پروننسیشن صحیح ہونا چاہیے، نام یاد ہونے چاہیے. سورہ القریش، ہے نا؟ یہ پڑھ رہے ہیں ہم. آپ تشریح کریے بسم اللہ کی. اور قریش. جی رحمت نور صاحبہ.
कहाँ चली गई? डिस्कनेक्ट हो गई शायद। कोई और पढ़ ले जब तक। सदफ जहां साहिबा, जी। आप पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। जी। बा को सीन से मिला के पढ़ेंगे क्योंकि सीन पे साकिन है। हम्म। और मीम को लाम से मिला के पढ़ेंगे। इसमें अलिफ लाम ही इसमें, इसलिए हरूफ शमसी का कायदा लगेगा। और इसमें बारीक पढ़ेंगे जो कि जेर है। किसको बारीक लाम से पढ़ेंगे? बिल्ला किसको बारीक लाम को, पढ़ेंगे? लफ्ज अल्लाह के लाम को लफ्ज बारीक अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे तरह से। क्योंकि जेर जी। है। और जी। लाम को अ, तजदीद, लाम में तजदीद है इसलिए इसको सख्ती से अदा करेंगे। एक बार लाम को मीम से मिला के और एक बार लाम को खुद में। और खड़ा जबर होने की वजह से एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और हा के नीचे जेर ही इसको जल्दी अदा करेंगे। नहीं नहीं, और से देखिए। इस, इसको हा को अपन रा से मिलाएंगे इधर, लेकिन यहाँ पे हम्म। भी अलिफ लाम है तो यहाँ पे हरूफ शमसी का कायदा लगेगा। रा को फुर पढ़ेंगे और रा को रा पे तशदीद है इसलिए रा को सख्ती से अदा करेंगे और रा को हा से मिला के पढ़ेंगे। रा हो जाएगा। और मीम को खड़ा जबर होने की वजह से एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और नून को रा से मिलाएंगे। और यहाँ पे भी हरूफ शमसी का कायदा लगेगा और रा को फुर पढ़ेंगे और सख्ती से अदा करेंगे और खुद में भी पढ़ेंगे। और खुद हा में को खुद में पढ़ेंगे, खुद की एराब के साथ पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे जो जबर की है। जी खुद की एराब के साथ पढ़ेंगे। और हा को आ, हा को या से मिला के पढ़ेंगे। रॉ पे जबर की एराब लगी है, इसे जल्दी अदा करेंगे और पुर पढ़ेंगे, है ना? ये भी जी बताइए। रा पे जबर की एराब लगी है, इसको हम्म। जल्दी अदा करेंगे और फुर पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया है। और हा को या से मिला के पढ़ेंगे और मीम यहाँ पे आयत करने के लिए मीम पे साकिन दे देंगे तो रहीम हो जाएगा। हाँ या जेर क्या हो रहा है? हा ये जेर ही, मतलब हम्म। जल्दी अदा करेंगे, ये हो रहा है। कौन सा फायदा लग रहा है यहाँ? यहाँ पे हरूफ मद्दा का कायदा लग रहा है। तो आपने बताया था क्या? नहीं, फिर निकल गया जहन से इसलिए। नहीं, मैंने ये सोचा कि शायद कहीं मैंने सुना नहीं क्या, इस वजह से नहीं मैं नहीं, पूछ रही मैंने नहीं बताया हेलो, था, मेरे मेरी आवाज जहन आ से रही है? निकल थी। गया था। जी जी, आ रही है सना साहिब आवाज। जी, सबके हो गए फायदे, सबने बता दिए। नहीं, सबने तो नहीं बताया अभी। सदफ जहां बता रही थी, इन्होंने चलिए। बता दिया। अदीबा साहिबा ने बता दिया। और अनीसा भी से आपने पूछ लिया था। कमर जहां ने नहीं बताया, रहमत नूर ने बता दिया, रुबीना साहब, दो तीन लोग बचे हैं मेरे ख्याल से, अगर आपने नहीं पूछे तो। आफरीन अजहर और आफरीन दूसरी वाली, इन लोगों से पूछे थे क्या आपने? अब भी मैंने बता दिया आपको, आफरी नजर। अच्छा, हाँ हाँ, आपने तो बता दिया था, सही है। मैंने भी बता दिया साइमा इब्राहिम आपको। हम्म। बस हम ही बचे हैं खाली, कमर जहां। जी, हम ठीक है। कमर साहिबा बची हैं। जी, जिसने बताया माशाल्लाह ठीक बताया, और जो जिसने नहीं बताया वो भी अच्छा बताएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। ठीक है, आप लोग होमवर्क के साथ कायदे भी बता दीजिएगा ग्रुप में, रिकॉर्डिंग में। जी जी अप्पी। अपी इंशाल्लाह। जी अपी, आज आप मैं ये अच्छा। क्वेश्चन आपसे करने वाली थी कि अपी आप जी, फिर थोड़ा। आप अच्छा नहीं। जी। जी, बोलिए बोलिए। जी अपी, आज मैं आपसे ये क्वेश्चन करने वाली थी कि अपी आप होमवर्क में भी हम लोग को कायदों का वो दे दीजिएगा, थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जी अप्पी, प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे बोल नहीं पाते ना, थोड़ा घबरा जाते।
کہ यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है, ऐसे करके ना, जहाँ पर मद आ रही है वहाँ कौन सी की मद है। आवाज नहीं आई सना साहिबा, आपने क्या बोला? आवाज नहीं आई। पहले तिलावत कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कायदे बता दीजिएगा, ये बोल रही हूँ। अब आई आवाज? जी 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 सना अपी। साहब। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ। पिछली बार की तरह पता नहीं क्या क्या होता है कि दिन में ही होता है नेटवर्क प्रॉब्लम। सुबह वाली क्लास तो आसानी से आती है। पिछले हफ्ते भी आई थी। फिर कट रही है आपकी आवाज। ठीक है, आप लोग होमवर्क में कायदे भी भेजिएगा, ये कह रही हैं सना साहिबा। तो आप लोग कायदे ऐसे भेजें कि वो बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं हो जाए, है ना। ऐसा करिएगा, बड़े बड़े कायदे ले लीजिएगा, जबर जेर के जो छोटे छोटे कायदे हैं ना उन्हें छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जी हरकत वाले कायदे छोड़ दीजिएगा। और वक्फ वक्फ के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हों वक्फ के, वो बता दीजिएगा इस तरह से, नहीं तो बहुत लंबी रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी। जी मतलब ठीक। सूरह में बताना है ना कायदे। हाँ, ये सूरा पढ़ के एक बार रिकॉर्ड करिए और उसी के आगे एक ही रिकॉर्डिंग में उसी के आगे आपने इसकी तशरीह भी कर दी और बड़े अच्छा बड़े कायदे बता दिए, छोटे छोटे छोड़ दिए। चलो जी साहब एक एक आयत बता दें। लगा दीजिए आप नूरानी फायदा तख्ती नंबर 10। ठीक है। आप लोग एक बार आपको कुरैशिन, आसानी होगी। हेलो, एक बार सूरह कुरैश लगा देंगे स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट लेना था प्रैक्टिस के ग्रुप में लिए। भेजेंगे हम आपको, ग्रुप में देख लेना आप। पीडीएफ भेज अच्छा देंगे अच्छा। आपको, पीडीएफ भेज देंगे। ओके। जी 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 शुक्रिया। जी फरहाना साहिबा और आफरीन साहब से जी नंबर को जी जी अपी, अस्सलाम आज वालेकुम तख्ती वरहमतुल्लाह। नंबर 10 बताएंगे। पिछले हफ्ते 9 पढ़ी थी। जी अब 10 तख्ती नंबर 10 बताएंगी ना, इख्फा इख्फा। जी इजहार किसे कहते हैं? जी हर्फ हल्की के 6 हर्फों में से हुर्फे तनवीन या नून साकिन के बाद हर्फ हल्की नून के तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्के आते हैं तो वहां पर नून की आवाज को जाहिर आवाज को करके पढ़ते हैं। जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्दी अदा करेंगे। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही। आवाज वो कट कट के आ रही है। हर्फ हल्की के 6 हर्फ में देखिए सना मैसेज साहिबा ने क्या आया है। मैसेज मैसेज करा है, पढ़िए। ओफराना साहिबा और क्या नाम है दूसरी, आप है ना आप वॉइस दोनों। नोट पर आफरीन। पढ़ा दीजिए। आप पढ़ा दिए ना, आप आपकी सही आवाज आ रही थी। जी टीचर सना ही है, वो बताएंगी। जी आप खान और ग्रुप चैट। हेलो। जी 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 मैं पढ़ा रही हूँ, जब तक मेरी आवाज आ रही है सुन लीजिए।
जब मेरी आवाज उठ जाए तलत साहब आप पढ़ा दीजिएगा, मैं लीव कर दूंगी। जी ठीक है। इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, है ना। लफ्ज इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, जी ठीक है। हरूफ हलकी 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इन्हें हरूफ हलकी भी कहते हैं और हरूफ इजहार भी, जी ठीक है। आफरीन साहिबा, गुफराना साहिबा, आवाज जी आ जी रही है? जी जी आ रही है। जी। ये पिछले पिछले हफ्ते पढ़ा दिया था। कायदा है इजहार का। जी इजहार। जी, तनवीन और नून साकिन की 4 कायदे हैं। पहला कायदा है इजहार का। इजहार का मतलब होता है जाहिर करना। अब तनवीन और नून साकिन की आवाज सेम होती जी है, हमने पढ़ा है, सेम होती है ना। तो अब जी तनवीन और नून साकिन के बाद हरूफ हलकी यानी हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इन 6 हरूफों में से कोई हरूफ आता है? जी 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 जी। भाई 6 हरूफों में से कोई हरूफ आएगा तो नून साकिन की आवाज को अब आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। चलिए, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है उनकी तरफ कुछ टाइम से। अल्लाह पाक आसानी करें उनके लिए। मैं कंटिन्यू कर देती हूँ आपको। इजहार आप लोग पढ़ चुके हैं, रिवाइज करें अपन या आगे बढ़े क्योंकि टाइम कम नहीं, है। आपकी याद है, आप है ना, आप तो अगला पढ़ा दीजिए। ठीक है इसका ठीक है। हमें आपसे एक बात कहना थी। जी मंडे कहिए। को आपने ना फर्स्ट लेवल की क्लास ज्वाइन करी थी मगर उसमें एब्सेंट डली हुई है। मंडे को आपने ज्वाइन करी थी, कौन? आफरीन साहिबा। जी जी आफरीन साहिबा, आप ग्रुप पर मैसेज कर दें लेवल 1 की कि हमने मैंने कर। ज्वाइन करी थी। असल में क्या है कि मैं नाहिदा साहिबा को बोल दूंगी, आप और आफरीन अजहर साहिबा भी लेती है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। आप अपना नाम लास्ट लिखा करिए, आफरीन लतीफ। नहीं, वो रिकॉर्डिंग में जो यूट्यूब की डली है ना उसमें भी वो आफरीन नाम ले रही थी, आफरीन लतीफ। तो मैं अच्छा जीजी भी कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ भी हुआ करे, आप ग्रुप में फौरन मैसेज कर दिया करिए, है ना, कि कर दिया। मैं प्रेजेंट थी, मेरी प्रेजेंट लगा दें। जी इंशाल्लाह मैं उनको बोल दूंगी और मैसेज करके, ठीक है। जी। ठीक है। माइक म्यूट कर लें जिसकी तरफ से आवाज आ रही है। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 10 क्या है? इख्फा। आपको तख्तियों के नंबर भी याद होने चाहिए, कोशिश करें कि वो याद हो, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको सीधा पूछते हैं तख्ती नंबर 10 बताइए, तो आपको वैसे बतानी होगी। तो तख्ती नंबर 10 क्या है? इख्फा। ठीक है, तख्ती नंबर 10 क्या है? देखिए, पढ़ तो ये लोग रही हैं आफरीन साहिबा और गुफराना साहिबा, पर आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, तो आप लोग भी सुनिए गौर से। लेकिन बेहतर है कि ज्यादा जवाब जो है वो आफरीन साहिबा और गुफराना साहिबा ही दें, ठीक है। तख्ती नंबर 10 इख्फा, ठीक है। बोलिए, जी साथ बोलिए, तख्ती नंबर 10 इख्फा। बस तख्ती इख्फा। नंबर 10 इख्फा। तख्ती नंबर 10 इख्फा। तीन इख्फा। नंबर तख्ती पे नंबर 10 इख्फा। तख्ती नंबर 10 इख्फा। तख्ती नंबर तीन 10 नंबर 10 इख्फा। तनवीन और नून साकिन का ये कौन सा कायदा है? दूसरा। जी मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? तनवीन और नून साकिन के कितने कायदे होते हैं? 4। चार। 4। आप कितने पढ़ चुके हैं? ये पहला एक। पढ़ चुके, इजहार। अब ये दूसरा है इख्फा। इख्फा, ठीक है। जी तो अब इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, तनवीन और नून साकिन हाई अलर्ट, है ना। तनवीन जी और नून साकिन, पूरे कुरान पाक में तनवीन और नून साकिन आएगा तो हम हाई अलर्ट पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 कायदे में से एक कायदा जरूर लगेगा, कुछ ना कुछ वहां पर हो रहा होगा। और क्या हो रहा होगा? किसके साथ हो रहा होगा वो?
नून की आवाज के साथ, या नून जी की आवाज जाहिर करी जाएगी या छुपाई जाएगी या अलग तरीके से पढ़ी जाएगी या मिलाई जाएगी, ऐसी होगी वैसी होगी, वो सब कुछ वो आप जब चारों कायदे पढ़ेंगे तो चारों में पता चलेगा। लेकिन क्या होगा, तनवीन और नून साकिन की एक ही आवाज होती है, एक सी आवाज होती है कि नहीं होती? जी जी तो तनवीन और नून साकिन की एक सी आवाज कैसी होती है? नून की, न की, है ना। तो वो नून की आवाज के साथ उसके साथ जो चेंजेस होंगे हम उसका कायदा पढ़ रहे हैं, इस बात को समझने, है ना। तो तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। पहला कायदा हमने पढ़ लिया इजहार का, दूसरा हम पढ़ रहे हैं इख्फा का। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। जी जी अब हम कायदे की तरफ जाते हैं, हुरूफ इख्फा। अब जैसे हुरूफ इजहार थे उनको हल्की भी कहा जाता है, इसी तरह इसके भी हुरूफ हैं, क्योंकि तनवीन और नून साकिन के बाद जो हुरूफ आते हैं हमें उसी को देखकर डिसाइड करना होता है कि यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है। तनवीन नून साकिन का, पहला इख्फा का, दूसरा पहला इजहार का कि दूसरा इख्फा का, या फिर आप आगे पढ़ेंगी तीसरा और चौथा उसका। तो ये जो हुरूफ हैं वो बहुत जरूरी हैं। हुरूफ इख्फा जो हैं वो 15 हैं। कितने हैं हुरूफ इख्फा? 15 कितने 15 हैं? हुरूफ इख्फा कितने हैं? 15 15 हुरूफ इख्फा कितने हैं? 15 15 हुरूफ इख्फा कितने हैं? 15 15 ठीक है। और हुरूफ इजहार कितने हैं? 6 6 कौन कौन से थे? हमजा, हमजा, हा, गैन, हा, हा, गैन, गैन, हा। हा। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब हुरूफ इख्फा कितने हैं? 15 हैं। कौन कौन से हैं? जरा आप लोग पढ़िए स्क्रीन पे से देखकर। सा, 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 नूरानी कायदे में से पढ़ना है। अच्छा ये है तो ता, स्क्रीन पे लिखना दाल, चला है। जाल, फा, सा, जीम, दाल, ज, जे, द्वाद, सीन, तोय, शीन, ता, फा, तौद, आ, तूर, काफ। तो, जो, फा, काफ, काफ। ठीक है, तो देखिए अब मेरा सुनिए, बोलिएगा मत। ता, सा, जीम, दाल, दाल, ज, ज, दाल नरमी, जंजनाहट, दोनों में डिफरेंस है। सीन, शीन, सौद, सौद, दौद, दौद, तो, तो, जो, कोई गोन्ना की आवाज नहीं आएगी, जो या तोई या जोई, इस तरह की आवाजें नहीं आएंगी, सीधा सिंपल तो, जो। ठीक है, इसके बाद है फा, बहुत आसान, कौफ, काफ। ठीक है, काफ। अब आई बारी इसकी कि ये हुरूफ याद कैसे होंगे। तो ये हुरूफ थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इन्हें याद करने में, पर अगर आप बेहतर है कि आज याद करेंगी ना तो ही आप याद जी कर पाएंगी, नहीं तो फिर आपका जो छूटेगा तो फिर नहीं कर पाएंगी, पहली बात। जी दूसरी इंशाल्लाह। ये कि इसको एक पेपर पे लिख कर और किचन के जहां पर आपका गैस रखा है उसके ऊपर वाले वहां पर लगा लें, और जी दिन भर चलते फिरते उस पर नजर डालते रहें और बोलती रहें, तो एक ही दिन में वो ऐसे याद हो जाएंगे, फिर वो कभी नहीं भूलेंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के याद करें कि देखिए अलिफ बा छूट रहा है क्योंकि बा अकेला हुरूफ, बा बड़ा इंपॉर्टेंट हुरूफ है ना, 2 कायदों को कवर करता है बा, तो बा यहाँ इस लिस्ट में नहीं आता है ना, कहाँ कहाँ काम करे वो बेचारा बा। तो इस तरह से याद रखिए। फिर आया ता और सा, दोनों इनकी फैमिली के 2 मेंबर यहाँ पर मिल रहे हैं ना। फिर हा खौ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम उसे पहले कायदे में पढ़ चुके हैं, हुरूफ इजहार में आ चुके हैं ना, वो हल्की वाले हुरूफ में आया है कि जी नहीं आया? हा जी और खौ दोनों आए ना, तो वो जी उधर काम कर रहे हैं तो इस कायदे में नहीं आए, क्योंकि तनवीन नून साकिन के कायदे में जो 4 कायदे में जितने हुरूफ आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे कहीं, है ना। एक कायदे में आएगा तो दूसरे में वो रिपीट नहीं होगा। तो ये हो गया, तो इनकी फैमिली से जीम ने यहाँ पर अटेंडेंस दे दी। जी दाल दाल दोनों ये ट्विंस हैं, एक जैसी शक्लों वाले, दोनों के दोनों आ गए। अब ज और रा में से रॉ यहाँ पर नहीं आया, है ना। रॉ भी बड़ा स्पेशल है तो वो भी यहाँ नहीं आया, उसने यहाँ शिरकत नहीं करी, तो ये ज आ गया। अब बड़ा आसान है, यहाँ तक का मामला अगर आपने इस तरह से
समझ कर याद कर लिया, त थ जीम दाल दाल ज, इस तरह से याद कर लिया, तो आगे तो सब ट्विंस वाले हुरूफ आ रहे हैं। गौर करें, सीन शीन सौद दौद तौजो फ़ाक़ाफ जी और जी। काफ। कॉफ। काफ तो वो याद हो ही जाएगा कि कॉफ के बाद काफ भी आ रहा है ना। जी सारे ट्विंस यहाँ पर आ गए। कौन से ट्विंस नहीं आए? आइन और गईन नहीं आए हैं यहाँ पर, तो उसको मत लेइएगा। बाकी सारे ट्विंस वाले जो हुरूफ हैं वो सब आ गए, आए हैं ना। जी। ठीक है, कायदा तो याद हो जाता है, लेकिन हुरूफ हम पहचान नहीं पाते कुरान पाक में या फिर मश्क करते वक्त, और हम भूल के वहां पर इख्फा की जगह इजहार कर देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं, और ज्यादातर शुरू में यही होता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसके हुरूफ याद करने का थोड़ा सा एक तरीका बता दिया कि आप इस तरह से ध्यान देकर याद करें। ठीक है, इंशाल्लाह तो आपको आसानी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जी। हुरूफ इख्फा कितने हैं? हरूफ इख्फा 15 है। हम्म, ठीक है। और तनवीन और नून साकिन का ये कौन सा कायदा है? कायदा नंबर दूसरा 2। दूसरा कायदा है। ठीक है, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा, इख्फा है ना, हुरूफ इख्फा। इख्फा आए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। नून की आवाज को क्या करना है? हमें नाक में छुपाना है। अच्छा, एक चीज नोट कर लीजिए, इख्फा का मायना होता है छुपाना। इख्फा के लफ्जी मायने क्या होते हैं? छुपाना। तो यहाँ हमें क्या छुपाना है? नून की आवाज को छुपाना है। इजहार में क्या करा था हमने? नून की आवाज को जाहिर करा था। यहाँ पे नून की आवाज को क्या करेंगे हम? छुपाएं। छुपाएंगे। वहां दिखाया था खोल खोल के, और यहाँ क्या करा है? यहाँ पर हम छुपा लेंगे। ठीक है, किसको? नून की आवाज को। समझ गए? अब जी। नून की आवाज को छुपाएंगे कैसे, वो बताएंगे। ठीक है, जबान, ये देखिए ब्रैकेट में उन्होंने यहाँ लिख कर रखा है, नोक जबान तालू से हटा कर जैसे उर्दू में पंखा के पर नून को पढ़ते हैं, है ना। उन्होंने आपको बताया है इस तरह से कि आप इसकी आवाज को इस तरह छुपाएंगे कि पहले नून का मखरज क्या होता है कि जबान को आगे के दो दांतों के जड़ से लगाते हैं तो नून अदा होता है, नून। तो आपको वहां लगाना नहीं है, उसको वहां पे अध पर रख देना है, और आपको करना है इस तरह से, है ना। मतलब जी। जबान आपकी नून के मखरज पर नहीं जाएगी और नाक में से गुन्ना वाली आवाज आएगी। तो इस तरह से आप इख्फा की आवाज को मतलब इख्फा की आवाज को निकाल पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अपन बोलते ना पनखा, पनखा नहीं कहते ना, पन, पन बोलने में नून को ऊपर तालू पे नहीं लगाते, हम क्या बोलते हैं? पंखा, पंखा। बस सेम ये इख्फा हो रहा है। अतफर रखना है जबान को। अर्थ पर रखेंगे जबान को, और आवाज कैसी निकालेंगे? जैसे हम बोलते हैं पंखा, पंखा बोलने के लिए हम नून की जो, अगर हिंदी में लिखते हैं पंखा, तो हम जो बिंदी लगाते हैं ऊपर, है ना, ना नहीं लिखते, बिंदी लगाते हैं, और उसको कैसे पढ़ते हैं? पंखा। इसी तरह से पढ़ेंगे ता, अन, है ना। अन, पहले आवाज कैसे निकालनी है वो समझ लीजिए। आई जी समझ में आवाज? जी। पंखा में कैसे बोलते हैं अपन? पंखा चला दो, पंखा। अपन ये नहीं बोलते ना पनखा, पन, पन न, ना का मखरज जबान को तालू से लगाकर पंखा नहीं बोलते, हम बोलते हैं पंखा। तो जबान हमारी अतपरे बीचों बीच है, नून के मखरज पर जाने से पहले रुक गई है वो, है ना। जी समझ में आ गए आप दोनों को अच्छे से? जी। जी जी। ठीक है, अब हम इसको मश्क कर लेते हैं, टाइम हो चुका है। तो हम दो एक हुरूफ ले लेते हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? अन, क्या हो रहा है? पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे इख्फा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तनवीन और नून साकिन में से क्या आ रहा है? नून साकिन। इसके बाद कौन सा आ रहा है? हुरूफ ता आ रहा है। तो क्या यहाँ ता है 15 हुरूफों में? जी है। तो फिर क्या होगा? यहाँ इख्फा होगा, है ना। तो यहाँ जी। पे क्या होगा? हम अन नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने इजहार में अन पढ़ा था, यहाँ पे अन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे ता, अन, ता। और इसको जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, उतना ही खींचना है जिसमें आप सामने वाले को ये बता पाओ कि हमने इजहार कर दिया यहाँ। ता, ठीक है। अंता। ता,
मोजी, यहाँ पे भी नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? मुंजी क्या आ रहा है? जाल है ना? जाल तो है ये ना, हुरूफ हल्की के 15 हुर्फों में से है। जाल आ रहा है, जाल। हाँ, तो हुरूफ 15 हुर्फों में से है कि नहीं है? जी है ना, जाल लिखा है ना। तो ये भी ऐसे पढ़ेंगे, आता मोजिरू, मुन- मोजिरू, है ना? मुंजिरु आवाज समझ में आई? रिपीट करिए, आता मोजिरू। अनता मुंजिरु अनता नहीं बोली, अन बोली। अन अन पहले इख्फा की आवाज सीख जाइए, फिर आप प्रोनाउंसिएशन तो कर ही लेंगी बाकी का। जी की अन आवाज निकालिए और नून की आवाज को नाक में से निकालिए। अगर आसान तरीका समझते हैं तो यूं करिए, जबान को कहीं टच नहीं करना। अ, अन अ, अन ता। अन अनता अंता मत बोलिए, आपकी जबान जाके तालू पे लग रही है, अंता निकल रहा है। अंता नहीं करना, जबान को मिलाइए नहीं तालू से। अंता। अन- हम्म। ता। पंखा कैसे बोलते हैं हम? पंखा, जी पंखा, पंखा। उसमें क्या जी आ रहा है? जी, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो सही है, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, फिर निकलने लगता है ना। इसके लिए ये करें कि कुछ रिकॉर्डिंग सुने, और जी जैसे कि यूट्यूब पे काफी रिकॉर्डिंग्स डली रहती हैं, जैसे शाहबाज हाफिज साहब की भी डली हुई हैं, तो आप जी उसमें से देखिए, तो आप उसमें गौर करें कि हाँ, यहाँ पे इख्फा हो रहा है तो ये कैसे आवाज निकाल रहा है ना, इस तरह से जी पढ़े। ता मुंजिरू। मुंजिरु देखिए, आपका पूरा पूरा मुंजिरू निकल रहा है, नून। हम्म। तो कोशिश करें, मैं बार बार टोकूंगी ताकि आप बार बार समझें इस बात को, जी जी है जी ना, इस वजह से। अब आगे क्या है? किरा, किरा। किरा किरामन कातिबीन हाँ, किरा मन नहीं है अब। तनवीन के बाद कौन सा हुरूफ आ रहा है? कातिबीन कौन सा आ रहा है तनवीन के बाद? ते आ रहा है ना, काफ हर आ रहा है अभी। काफ आ रहा है ना? जी, ते आ रहा है। काफ आ रहा तो काफ है क्या हुरूफ इख्फा में? 15 हरफों में से काफ है, है। है जी, ना? काफ काफ है। जी जी, तो हम काफ इसमें काफ यहाँ पे इख्फा करेंगे या इजहार करेंगे? इख्फा करेंगे। किरामन, किरामन पढ़ेंगे या किरामा पढ़ेंगे? किराम किरामा। ठीक है, किराम किरामा कातिबीन, है ना? जी काती बीन, बी और बीन में क्या हो रहा है? बा या जेर बी, या मद हो रहा है, तो दो हरकत खींच कर पढ़ेंगे एक अलीफ जी की मकदार में। काते बीन, है ना? किरा, जी किरा को भी खींचेंगे, की को नहीं, रॉ को खींचेंगे, के रॉ म रो काती बीन। कातिबीन जी ठीक है, कायदा समझ में आ गया? जी हुरूफ याद कर लीजिए और जी निकालने का तरीका सीख लीजिए। जी ठीक है, जी टाइम हो गया है दूसरी क्लास का, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। दुआ पढ़ जी। लेते हैं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दुआ पढ़ लें, दुआ बिना पढ़े नहीं जाए। ठीक है, जी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा जरूर से घर पे, है ना? जी जी इंशाल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना ربنا تقبل منا इन्नका अंतस समीउल अलीम। إنك أنت السميع العليم अब देखिए, इसमें भी कर सकते हैं आप लोग, है ना? इन्नका अंतस समीउल अलीम, है यहाँ पे, अंतस समीउल अलीम। वतुबु अलैना وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। إنك إنك أنت أنت التواب الرحيم. الرحيم سبحان ربك رب العزة سبحان سبحان ربك ربك رب رب العزة العزة عما يصفون عما عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين سلام وسلام على على المرسلين المرسلين
والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.